तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आप सभी को प्रणाम। A very good morning to all of you. Myself, Dr. Aparna Dheer Khandelwal, Assistant Professor INANS. Being the moderator of this event, I welcome you all. Shresth Kala Sangam, in collaboration with Hansraj College, University of Delhi, presents 15 days free yoga camp on the occasion of 151st birth anniversary of Mahatma Gandhi Ji. The theme of this camp is Yoga from Home. 15 days yoga camp is starting from today, that is Monday, 5th October to Monday, 19th October 2020. You all will be pleased to know that this program is going to live on Facebook pages of both the organizations. Hence, it is indeed a great initiative by both the organizations to try to reach out as many as youth and senior citizens. In this corona era, we all are surrounded by negativity. Yoga focuses on bringing harmony between mind and body. इस समय जैसा कोरोना काल चल रहा है और लगभग हम लोग अपनी गतिविधियों पर वापस तो आ ही गए हैं, लेकिन फिर भी मन में एक अलग सी नेगेटिविटी, चिंता, स्ट्रेस, एंजाइटी की फीलिंग है। तो मैं समझती हूँ इस तरह का योगा कैंप स्टार्ट कर कहीं ना कहीं हम अपने जीवन में सुबह सुबह ही प्रातःकाल ही उस पॉजिटिविटी को लाने की कोशिश कर रहे हैं और आप सब हमारा साथ इसमें दे रहे हैं और यही हम चाहते हैं कि हम और आप हमेशा सभी फिट रहें और अपने जो जीवन है उसको खुशहाल होकर जिए, ना कि नेगेटिविटी के साथ। एक जो डर इस समय बना हुआ है सबके मन में, कहीं ना कहीं इस तरह की एक्सरसाइज, फिजिकली फिट रहने से हम अपने आप को उन सब डर से दूर रख सकते हैं, दूर कर सकते हैं। So moving ahead, I like to give a brief intro about both the organizations and this webinar. About the Shresth Kala Sangam Society, you all know it is located in New Delhi, India. It is registered and the society is dedicated to the promotion of Indian classical dance, music, art, culture, literature and yoga. Through various performances, teaching, conducting workshops, lecture demonstrations, seminar, live performances, webinar, conferences, by nurturing the inner potential of the individual, artistic collaboration and experimentation. It considers these attributes as an ocean which has infinite things to explore inside. It also believes one can only reach to bring out the beauty of it when one assiduously considers it as a daily routine or ritual. The society is dedicated to maintaining the authenticity of the art vocabulary and work within its framework while pushing the boundaries. A place where individuals get to experience self-realization through various mediums. With this comes the evolution in their own life, which leads to the clarity in their thought process and helps them to create their own new version of themselves, more better and better every day. Most importantly, it helps them to develop great self-esteem and a deep sense of self-worth by focusing on self-improvement, which will lead to cherishing oneself without any judgment and comparison. The founder-president of Shresth Kala Sangam is Ms. Mehak Chawla ji, a Bharatnatyam Chau dancer and a choreographer from Delhi, India. There are many other eminent scholars, like Chief Patron is Shri Margi Madhu ji, eminent scholar and a Kudiyattam dancer and a choreographer from Kerala. Chairperson organizing committee is Dr. Baldevanand Sagar ji. He's with us today and he's an educationist, writer and a visiting faculty, National School of Drama, Delhi, India, to name a few who are in the organizing committee and in the advisory board of the society. Now, talking about the aims and objectives of this society, as you are already, हम लोग already पिछले 6 महीनों से श्रेष्ठ कला संगम के programs देख रहे हैं, and we are very much familiar with the programs they are doing. So still I want to say a few objectives of the society. First, it facilitates events that promote art and culture through outreach programs. Also, it provides a forum for a creative dialogue and creating opportunities through performances, conferences, seminars, workshops between and among the diverse arts, traditional and contemporary. Also, it identifies excellence and potential in the arts and offering avenues of encouragement.
तो मैं समझती हूँ हमें एक तरह से अपने मन से श्रेष्ठ कला संगम का धन्यवाद भी करना चाहिए इस विषय में, क्योंकि हमें एक तरह से जो ये कोविड का टाइम चल रहा है, ऐसे नई नई चीजें आर्ट एंड कल्चर के थ्रू, लिटरेचर के थ्रू, आज इस योगा कैंप के थ्रू दे आर कीपिंग आवर स्पिरिट्स एंड मोरल हाई डे एंड डे. So about the Hansraj College, that is the second, that is the collaborating institute of this program. One of the largest constitute colleges of University of Delhi, a premier institution with highly qualified academicians imparting education in different fields. The college today enjoys a reputation for outstanding performance in academics, sports, and extracurricular activities. Rated among top 10 colleges of the country in science, commerce, and arts, the college ensures complete development of the body, mind, and the soul, while enshrining traditional Indian values in each of its students. The college was founded by the DAV College Managing Committee on July 26, 1948, in the sacred memory of Mahatma Hansraj Ji, a pioneer in the field of education. It is today one of the leading lights in the DAV family of over 700 institutions and one of the largest constituent colleges of Delhi University. More than 5,000 students on its roll interact here with galaxy of scholars on its faculty. The college has completed 67 years in the realm of imparting higher education. It has made a significant and unparalleled contribution to society in terms of producing numerous dignitaries, scholars, intellectuals, and sport persons who serve different domains in not only in our own country but at international levels. Over the years, the college has built up an impressive infrastructure. It includes a well-stocked central library, departmental libraries and for science subjects, and a book bank for needy students. The college has 6 computer labs and 18 science laboratories. Its sports facilities include a vast playground and an indoor sports complex, playrooms, amphitheater, lift facility, electronic shooting range that is available only in the university. It is the only shooting range. The college has ultra-modern air-conditioned auditorium, light that is accompanied with various lights and sound system with a seating capacity of 500 persons and a stage. Also, another attraction is of the seminar room. Again, it is very well equipped with sound and projection systems. The college has a hostel of accommodating about 200 undergraduate boys that is equipped with solar geysers and 24-hour backup. As you enter the portals of this institution, the calm atmosphere of a beautiful campus surrounded by lush green lawns and a magnificent heritage building touch your soul. For the benefit of meritorious and needy students, the college provides a number of scholarships and free ships. It also provides on its premises ATM and banking facility through branch of Canara Bank. The college also has a placement cell for providing employment opportunities to graduating students through campus recruitments in the best of national and international organizations. As the stream of talent flows from this college to the world, join us to create and discover a new world. Now, about this yoga camp, why we are here, let us discuss that. Mahatma Gandhi ji said, literacy is not the end of education or even the beginning. By education, I mean an all-round drawing out of the best in the child and man, body, mind, and spirit. Gandhiji envisioned an India where honesty, ethics, values, and non-violence are taught alongside knowledge and skill in every corner of the country. Shresth Kala Sangam abides by these principles and works to make them a reality. Hence, we have come up with a 15 days free yoga camp in collaboration with Hansraj College, University of Delhi. Now, today we are having this an inaugural ceremony of this 15 days yoga camp, and we have with us our 2 distinguished guests that are very special for us. Our chief guest for today is Dr. Devanand Sagarji. He is an educationist, writer, and a visiting faculty, National School of Drama, Delhi, India. And we have our welcome for the welcome address and introductory remarks, we have Dr. Professor Ramaji. She is also an educationist, writer, and a principal of Hansraj College, University of Delhi, Delhi, India.
Now, moving ahead and to start our program, our inaugural ceremony, I would like to give a brief introduction about Professor Ramaji, and then for the inaugural address, I would like to welcome her. I would like to invite her. So, Professor Ramaji is a principal of Hansraj College, University of Delhi, and a great scholar of Hindi literature and media. She has written and edited more than 3 dozen of books related to Hindi journalism, literature, cinema, and education. Dedicated to the principles of Indian culture and nationalist ideology, Professor Ramaji, during her tenure, has taught in the last 3 decades, as well as she has created student-friendly books on the subjects of Hindi poetry, fiction, journalism, cinema, and education. She has organized hundreds of national and international seminars. And from the year 2001 to 2011, she has organized all India debate competition consecutively, which is a great achievement in itself. She is also associated with prestigious print and electronic media like All India Radio, Akashvani, Doordarshan, Hindustan, Jansatta, etc. From the past 2 decades, she has written more than 100 articles for nationally and internationally acclaimed journals and magazines and is constantly working in the field of literature and education. She has also been awarded several national and international accolades for her special contribution, which includes Vidya Ratna Samman, Mahadevi Verma Sahitya Samman, Sahitya Bharati Samman, Best Teacher Award, Shakti Achievement Award, Female Journalism Award, International Excellence Award in Hindi, to name a few. We welcome you, ma'am. We would like to invite you for the inaugural address, for the welcome address. Thank you, Dr. Aparna. नमस्कार। जी। श्रेष्ठ कला संगम और हंसराज कॉलेज के तत्वावधान में आयोजित इस 15 दिन के योगा फ्रॉम होम प्रोग्राम में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। इस 15 दिन के कार्यक्रम के आज के पहले दिन के हमारे जो इनॉग्रेशन प्रोग्राम है, इसके हमारे चीफ गेस्ट, हम सबके प्रेरणा स्रोत, हम सबके मार्गदर्शक, हम सबके आदरणीय डॉक्टर बलदेवानंद सागर जी। प्रोग्राम मॉडरेट कर रही डॉक्टर अपर्णा, जिन्होंने अभी बहुत ही अच्छे से श्रेष्ठ कला संगम का, हंसराज कॉलेज का, योगा कैंप का, इस सब का जो कहना चाहिए इंट्रोडक्शन दिया। अपर्णा, जिस तरह से आपने इंट्रोडक्शन दिया उसके लिए आपका भी स्पेशल थैंक्स। श्रेष्ठ कला संगम के से महक चावला, हेमंत कुमार और उनकी पूरी टीम, हंसराज कॉलेज के से मिस्टर अमित चौहान और उनके साथ पूरी उनकी टेक्निकल टीम, हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स, मैं देख रही थी कि पार्टिसिपेंट्स धीरे धीरे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो आप सबको इस अच्छी सुबह की एक स्पेशल नमस्ते, आप सबका हार्दिक अभिनंदन है, आप सबका वेलकम है। क्योंकि जैसा अभी डॉक्टर अपर्णा बता रही थी कि हमने महात्मा गांधी जी की 151 बर्थ एनिवर्सरी पर हमने इस कार्यक्रम को आयोजित किया है। मुझे लगता है हमारे आज के चीफ गेस्ट डॉक्टर बलदेवानंद सागर जी हैं। आप उनको सुनकर, उनको देखकर सोच भी नहीं सकते कि उनकी आयु कितनी होगी। मुझे लगता है कि वे हम सबसे अधिक युवा हैं, क्योंकि वे मन से सकारात्मक हैं, वे तन से स्वस्थ हैं। यानी जैसा कि डॉक्टर अपर्णा भी बता रही थी कि महात्मा गांधी जी जो बात करते थे कि किसी भी व्यक्ति के लिए उसका शारीरिक, उसका मानसिक, उसका आत्मिक विकास जब होता है, तभी उसका चहुमुखी यानी एक उसका ऑलराउंडर जो उसका एक डेवलपमेंट होना चाहिए एज अ ह्यूमन बीइंग, उसके लिए उसका स्वास्थ्य अच्छा होना बहुत अधिक आवश्यक है। और कोविड-19 ने भी हमें यही बताया है कि कोविड-19 जैसे खतरनाक जो दुश्मन है, जो हमें दिखाई नहीं देता, अदृश्य दुश्मन है, इस एनिमी के साथ लड़ने का, इससे दूर रहने का केवल और केवल एक ही उपाय है कि हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होनी चाहिए। इम्यूनिटी स्ट्रांग कैसे होगी? हमारा खान पान अच्छा हो, हम सहज और सरल जीवन जिए, लेकिन साथ ही साथ हम अपने आप को व्यायाम के माध्यम से हम
शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखें। अब जब हम शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने की बात करते हैं तो चारों तरफ हम देखते हैं कि जिम खुले होते हैं। वो अलग बात है कि लॉकडाउन में जिम भी बंद हो गए, लेकिन जिम जो है उस तरह से हमें मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं रखते। जो योग है, योग हमें शारीरिक, मानसिक, आत्मिक तीनों रूपों से हमें स्वस्थ रखते हैं, क्योंकि योग हमें बाहर की दुनिया और अपने अंदर की दुनिया के साथ जोड़ता है, एक हमारा सामंजस्य बिठाता है, हमारी सोच को सकारात्मक बनाने के लिए योग ही सहायक होता है। मैं बहुत अधिक लंबा आपको लेक्चर इसलिए नहीं दूंगी क्योंकि योग के बारे में सुनने से नहीं बल्कि योग करने से आपको इसके लाभ पता चलेंगे। ईश्वर करे ये जो 15 दिन का आप योग सीखेंगे, जो 15 दिन का कार्यक्रम अटेंड करेंगे, उसके बाद योग आपके दिनचर्या की, आपके डेली रूटीन की योग एक पार्ट बन जाए। आप जिस तरह से मोबाइल के बिना नहीं रह सकते हैं, उसी तरह से आप योग के बिना भी ना रह पाए। अगर ऐसा होता है तो 15 दिन के कार्यक्रम की बहुत बड़ी सार्थकता होगी। एक बार पुनः मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज के चीफ गेस्ट डॉक्टर बलदेवानंद सागर जी को हंसराज कॉलेज की तरफ से, श्रेष्ठ कला संगम की तरफ से, सभी प्रतिभागियों की तरफ से उनका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, उनको धन्यवाद देती हूँ। क्योंकि मैं आपको बताऊं, डॉक्टर बलदेवानंद सागर जी, इनसे जब भी कभी आप बात करिए, सुबह की बात करिए, रात की बात करिए, ये हमेशा तत्पर रहते हैं साथ देने के लिए, तो इनका हार्दिक अभिनंदन है। डॉक्टर अपर्णा को मैं उनका वेलकम करने के साथ साथ अब मैं उनको शुभकामनाएं भी देती हूँ। ईश्वर करे वे स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, इसी तरह के साथ योग के कार्यक्रमों के साथ हम सबको जोड़ती रहें। पुनः एक बार आप सबका अभिनंदन, आप सबका धन्यवाद। ईश्वर आप सबको स्वस्थ एवं प्रसन्न रखें योग के माध्यम से। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद। आपने सच्ची बहुत सही बात कही और सबसे पहले तो हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं कि आपने हमारे इस प्रोग्राम के लिए साथ में आपने कोलैबोरेट किया और हमें ये मौका दिया कि हम योग को इस तरह से इस टाइम पे, इस कोरोना काल में हम सबके साथ जोड़ सकें, उनको अपने साथ जोड़ सकें। और आपने बिल्कुल सच कहा, अभी हमने जून में जैसे इंटरनेशनल योगा डे पर भी के अवसर पर भी हमने वेबिनार किया था, इंटरनेशनल वेबिनार श्रेष्ठ कला संगम के माध्यम से, तो तब भी हमने यही बात सामने लाई थे जो आपने कही। और तब बात ये है कि तब हमने उसका फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव पे बात की थी कि किस तरह से उसका दार्शनिक आध्यात्मिक रूप है योग का, लेकिन आज हम उसको फिजिकली कैसे करते हैं, कैसे उसको अपनी एक्सरसाइज अपनी दिनचर्या में लाना है, ये अब हम इन अगले 15 दिनों में सीखेंगे। और आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर हमें अपने आप को उस छोटे से जीवाणु से, जिसने इस टाइम समस्त, मतलब मैं तो हमारे लिए सृष्टि का मतलब तो अर्थ ही है और तो इससे आगे तो मैं नहीं जानती, तो जिसने संपूर्ण विश्व को अपने चुंगल में फंसाया हुआ है, ऐसे उस जीवाणु से लड़ने के लिए अगर हमें कुछ करना है, इम्यूनिटी तो ये तो मेडिकल वर्ड है, लेकिन अपनी सोच को सकारात्मक रखना है, अपने आप को स्वस्थ रखना है, तभी हम आगे बढ़ सकेंगे और तभी हम उससे लड़ने की हमारी क्षमता बढ़ सकेगी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम कि आपने इस और हमारा ध्यान आकृष्ट किया। अब मैं आज के जो हमारे चीफ गेस्ट हैं उनके विषय में कुछ कहना चाहूंगी और उनको आमंत्रित करना चाहूंगी। जैसा कि हम सब जानते भी हैं और मैं फिर भी बताना चाहूंगी, हमारे बीच हमारे आज के चीफ गेस्ट हैं डॉक्टर बलदेवानंद सागर जी। He is an eminent scholar in the field of Sanskrit journalism and theatre. He was the first one to serve as the Sanskrit anchor in Doordarshan News in the whole world and the third person to deliver news in All India Radio. He has also given lectures at various universities and is appreciated by everyone. He has been teaching translation, dictation, presentation and soft skills in the capacity of visiting faculty at National School of Drama, New Delhi. He has also served as director, Kalidas Sanskrit Academy, Ujjain. Recently, he has translated International Yoga Day Common Protocol book for Ayush Ministry, Government of India. Since April 2015, he has been engaged in telecasting live lectures for DD Vyas channel for higher education under Consortium for Educational Communication and Inter-University Center for University Grant Commission on Electronic Media. Till date, he has delivered 106 lectures under the live lecture series by the name of Learn Sanskrit and Be Modern.
He has also written the first book in Sanskrit on Sanskrit journalism, history, and its modern forms. Since May 2017, he has been engaged in the project of translating into Sanskrit and broadcasting Prime Minister's Mann Ki Baat Manogatam on All India Radio. एंड प्रोफेसर सागर सर, जैसा कि अभी प्रोफेसर रमा मैडम ने बताया कि सर हम सबसे युवा हैं और ये बात सच भी है। मैं अपने जो मेरी पढ़ाई का शिक्षा तो खैर अभी भी मेरी चल रही है, हमेशा ही चलती रहेगी, लेकिन जब मैं पढ़ती थी दिल्ली यूनिवर्सिटी में तब से ही मैं सर को देख रही हूँ और सर मुझे ऐसे ही देख रहे हैं। शायद मेरे अंदर चेंज आ गया होगा, बट लेकिन सर वैसे ही हैं, वैसे ही स्वस्थ हैं, वैसे ही युवा हैं और वैसे ही सकारात्मक हैं। So we welcome you, sir, for the keynote address of this inaugural session. धन्यवाद अपर्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। ओ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। सद्गुरुभ्यो नमो नमः। योग फ्रॉम होम, गृहात् योगाभ्यासः, घर से योग का अभ्यास, इस विषय पर इस 15 दिन का जो निःशुल्क योग शिविर आयोजित किया गया है श्रेष्ठ कला संगम और दिल्ली विश्वविद्यालय के सुप्रतिष्ठित महाविद्यालय हंसराज कॉलेज के द्वारा, इस शुभ अवसर पर इस उद्घाटन सत्र की हमारी प्रेरणा मूर्ति आदरणीय मैडम हंसराज कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर रमा जी, और हम सब के बीच में बहुत ही सुचारू संचालिका कहिए और शिक्षा के क्षेत्र में अपना लगातार प्रयास कर रही डॉक्टर अपर्णा धीर खंडेलवाल जी, और जैसे कि डॉक्टर रमा जी ने कहा कि इस पूरी टीम के पीछे 2 संस्थाएं हैं, लेकिन श्रेष्ठ कला संगम के पीछे बहुत सारे लोग हैं। उसमें प्रमुख रूप से श्री हेमंत जोशी जी और सुश्री महक चावला जी, और हंसराज कॉलेज की टीम में आपने जैसे अमित जी का नाम लिया मैडम, और बाकी बहुत सारे लोग हैं। हम संस्कृत नाटक करते हैं तो उसमें यवनिका के पीछे बिहाइंड द कर्टन वाली बात करते हैं कि बहुत सारे लोग होते, उन सबको मैं याद कर रहा हूं इस शुभ प्रातः पर। और इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ जो जुड़े हैं और जुड़ेंगे, उन सब लोगों को मैं प्रणाम करके अपनी बात आपके सामने रखना चाहूंगा। मैडम, आपने बहुत ठीक कहा, क्योंकि योग जो है वो जीवन को पूर्ण बनाने की एक पद्धति है। जीवन वैसे तो पूर्ण नहीं है, हम सब जानते हैं, कुछ न कुछ कमी होती है। हम जैसा चाहते वैसा भी नहीं होता 100%। बहुत कुछ होता है, लेकिन बहुत कुछ चीजें नहीं हो पाती है। हमारे सपने, हमारे ड्रीम्स पूरे नहीं हो पाते हैं। लेकिन योग की प्रक्रिया ऐसी है कि वो हमको सतत इस बात की शक्ति और प्रेरणा ये योगाभ्यास देता है कि न भी पूरे हो तब भी हमें कार्य करते रहना है और कभी न कभी अवश्य पूरे होंगे। और हमारा अंतिम स्वप्न तो है पूर्णता प्राप्त करना। जो हमारे मनीषियों ने, ऋषियों ने, महापुरुषों ने जो बात कही है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, ये जो औपनिषदिक मंत्र है जिसमें कि पूर्णता की बात कही है। और ये हम सब जानते हैं, इसमें किसी भी वर्ग, देश, वर्ण, जाति कोई भेद नहीं, सबके लिए ये यूनिवर्सल लॉ, यूनिवर्सल नियम है कि सब पूर्णता प्राप्त करना चाहते हैं, जिसको संक्षेप में अगर हम परिभाषित करें तो सत चित आनंद, ये हमारा स्वरूप है। सत्य हमारा स्वरूप है, चित चेतनामय शक्ति स्वरूप हमारा है, और आनंद हमारा मूल स्वभाव, हमारा आनंद है। लेकिन हमारा ये जो आनंद है वो बीच में बाधित होता है कई सारे कारणों के कारण। तो उन बाधाओं को दूर करना ये योगाभ्यास का मुख्य लक्ष्य है। और विशेष तो क्या कहूं, योगेन चित्तस्य, ऐसे
महामुनि पतंजलि के बारे में कहा कि उन्होंने योग कैसा होना चाहिए, वो पूरा विज्ञान कैसा है जिसमें यम, नियम और प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, जो अष्टांग योग की बात कही। और उसके बाद वो कहते हैं कि योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त हमारा कैसा हो, जिसको हम समझे कि हमारा मन कैसा हो, हमारे विचार कैसे हो, हमारा एप्टीट्यूड कैसा हो, हमारी प्रवृत्ति वृत्ति कैसी हो, ये सब इसमें योग शब्द में समाहित हो जाता है। इस बात को उन्होंने बताया कि ये सब शरीर से सुलभ है, हमारा शरीर है तो ये सब पॉसिबल है, और शरीर अगर स्वस्थ है तो बिल्कुल संभव है, अगर अस्वस्थ है या कोई कमी है तो इसमें बाधा आएगी। इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता में वो जो संदर्भ मिलता है कि शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते, या मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। संस्कृत के श्लोक है, इसका भाव आप सब समझते हैं कि योग के द्वारा कोई साधना करता जीवन को पूरा करने के लिए, तो 70, 80, 90 वर्ष या 100 वर्ष जीने के बाद भी अगर उसमें पूर्णता नहीं आती तो फिर क्या होगा? अर्जुन का ये प्रश्न है, और उसका उत्तर है कि कोई बात नहीं, हम एक जन्म में नहीं, जन्म जन्मांतर में हमारा विश्वास है। और ये वैज्ञानिक सत्य है कि शरीर में जो सूक्ष्म शरीर है, जो कारण शरीर है, और दिखाई देने वाला स्थूल शरीर है, 3 शरीर, 3 बॉडीज मानते हैं, तो इसमें हमारा जो कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर, ये स्थूल शरीर चले जाने के बाद भी यात्रा करता है, और अगले जन्म में फिर योग वहां से हम शुरू करते हैं, योगाभ्यास। शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। तो ये सनातन सिद्धांत है, इसमें कोई विचिकित्सा, कोई संदेह, कोई आशंका नहीं है। अब क्या है कि हम सो के उठते हैं, फिर नित्य कर्म करते हैं, तैयार होते हैं, छात्र विद्यालय में जाते हैं, काम करने वाले ऑफिस में जाते हैं, पढ़ने पढ़ाने वाले विश्वविद्यालय महाविद्यालय में जाते हैं, ये तो है। लेकिन शरीर को, जो हमारा ये कार्य कर रहा है, उसको मन के साथ, हमारी मनोवृत्तियों के साथ, विचारों के साथ जोड़ने के लिए योगाभ्यास है। अब मैं एक और अनुभव आपके साथ में शेयर करूं। मैंने पहले भी अपने बात में आपसे शेयर किया था पूर्व व्याख्यानों में, या जैसे अपर्णा जी ने अभी कहा कि हमने वेबिनार किया था 21-22 जून के समय में, तो मैंने कहा था कि मैं बनारस में पढ़ा हूं, और मुझे सौभाग्य मिला है कि 12.5-13 वर्ष की उम्र में उपनयन संस्कार के बाद गुरुकुल में पढ़ने को भेज दिया गया। तो वहां तो व्यायाम का महत्व था ही, या गंगा में तैरते थे, दौड़ लगाते थे, दंड बैठक करने का जो एक पद्धति थी वो करते थे। लेकिन इससे मैं संतुष्ट नहीं हुआ, और 1-2 वर्षों के बाद मुझे लगा कि कोई इस तरह से बॉडी शरीर होना चाहिए जिसमें मसल हो, सीना एकदम चौड़ा हो, हनुमान जी की तरह शरीर होना चाहिए। ऐसा एक मन में किशोर अवस्था थी तो होना ये इच्छा थी। तो उस समय, आज तो जैसे मैडम रमा जी ने कहा जिम वगैरह की सुविधा हो गई है, लेकिन तब एक बुलवर्कर आता था, आपने सुना होगा या आप गूगल पर देख सकते हैं। बुलवर्कर का माने एक इस तरह का होता है 2.5 फीट का, और उसमें स्प्रिंग दोनों साइड से होती है, तो आप खींच भी सकते हैं और दबा भी सकते हैं। तो बुलवर्कर मैंने शुरू किया, सुबह शाम उससे अभ्यास करता था, जैसे आजकल जिम में करते हैं उस तरह से। तो मेरा अनुभव मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि उससे मुझे क्या हुआ कि मेरी शारीरिक शक्ति बढ़ गई। अब मेरे हाथों में जब पढ़ता हूं, पढ़ाता हूं इस तरह से, तो जगह जगह बार बार हाथों में इरिटेशन हो, और मैं दीवारों पर ऐसे हाथ मारूं, ऐसे हाथ मारूं, माने मैनुअल शारीरिक शक्ति मेरी बढ़ गई। लेकिन योग के द्वारा, उससे पूर्व जो योगाभ्यास करता था जिसमें सब आसन, पश्चिमोत्तासन, चक्रासन, मयूरासन, ये सारे, तो उससे मेरे शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा बढ़ी थी। यानी आपको ऐसे ही 3 घंटा 4 घंटा बैठना, आप बैठ सकते हैं, टेबल पर बैठ सकते हैं, और आप सो जाएं तो सुबह उठे तो आपका शरीर हल्का आपको महसूस होगा। ब्रीदिंग सिस्टम आपकी जो है, इनहेल और एक्सहेल जो की सिस्टम है, उसमें आपको आसानी महसूस होगी। ये योगाभ्यास, यानी कि मुझे स्वयं महसूस हुआ कि बाहरी उपकरण, जो बाह्य व्यायाम है जिससे हम पहलवानी करते हैं
या जिम में जाके शरीर बनाते हैं, उससे हमारी शारीरिक सुगठित शरीर हो जाता है, लेकिन हमारी पाशविक शक्ति जो जिसको मैनुअल पावर वो बढ़ती है, मानसिक और चैतसिक शक्ति योगाभ्यास से बढ़ती है। ये मेरा अनुभव है। तो जो भी अभ्यास अब बात आती है कि कितना समय, 24 घंटे में हम, हमारा महानगरीय जीवन है, उसमें इतनी व्यस्तता है, बहुत सारे काम करने हैं, तो कितना समय निकाले। तो प्राणायाम हो गया, 2-3 आसन हो गए जिसमें कि शरीर हल्का रहे, ब्रीदिंग सिस्टम ठीक हो। आप 2-4 आसन अपना सेलेक्ट कर लीजिए, आधा घंटा कीजिए, 10 मिनट कीजिए। और मैंने तो यहां तक आपको कहा था कि जब भी समय मिले आप खड़े हो जाइए, हाथ को सीधा करके गर्दन ऊपर करके ऊपर कीजिए, नीचे कीजिए। और स्ट्रेचिंग बोलते हैं योगाभ्यास में, आप प्राण का केवल है कि आप कपाल भाती या जो कुंभक रेचक प्रक्रिया है प्राणायाम की, थोड़ा सा आप कर सकते हैं, बैठे बैठे कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए जो बहुत सारे नियम बनाए जाते हैं कि पेट भरा हुआ नहीं होना चाहिए, खाने के एक बाद नहीं करना चाहिए, खाने के बाद आप वज्रासन पे बैठ जाइए, देखिए पच जाएगा सारा। ये अनुभव है। वज्रासन भोजन के बाद के लिए है कि आप दोनों पैर यूं करके उल्टा करके आप बैठ के 5 मिनट, 10 मिनट, 7 मिनट, जितना भी टाइम, तो जो खाने के बाद सुस्ती होती है वो समाप्त हो जाएगी। ये सारा बहुत कुछ वैज्ञानिक है, लेकिन जीने का, करने का, रमा जी ने जैसे कहा कि शास्त्राण्यधीत्यापि भवन्ति मूर्खा यस्तु क्रियावान पुरुष स विद्वान। जो करता है, प्रैक्टिकली करता है, क्योंकि प्रवचन का, व्याख्यान का या लिखने पढ़ने का केवल नहीं है, इसको करना है प्रतिदिन 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। और करते करते, क्योंकि हमारा शरीर बहुत सारे एक्सरसाइज, चलना फिरना, उठना बैठना, तो अकड़ जाता है। और योगाभ्यास जिसमें पहले आसन है, वो शरीर को फ्लेक्सिबल बनाता है, हमारी अंदर की नस नाड़ियों को खोल के जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है उतना प्रॉपर बना देता है कि शरीर हल्का हो जाता है। तो योगाभ्यास का एक तो जो आसन है उसका इतना ही प्रयोजन है, लेकिन इसका जो आगे अष्टांग योग का है, जिसको और डीपर नॉलेज चाहिए, बैठ के बहुत मन विक्षिप्त हो जाए, क्योंकि बार बार होता है, बहुत सारी परेशानियां होती है परिवार में, समाज में, बाहर व्यवहार में, तो उन सब से केवल उसका समाधान रूप में, शक्ति के रूप में, क्योंकि पॉजिटिविटी, रचनात्मकता चाहिए, शक्ति चाहिए, ऊर्जा चाहिए, इन सब के लिए सोने से पहले 1 मिनट, 2 मिनट केवल आप बैठ के केवल जो भी आप सोचे, जो भी इष्ट देव है उनका नाम ले, कुछ भी ना भी करे, तो मन को केवल नासाग्र यहां रख के सांस ले 2-4 बार, फिर सो जाइए, नींद आ जाएगी। रात में नींद खुल जाती है और बीच में नहीं आती है, तो आप पानी पी के, बाथरूम करके फिर दोबारा सोइए और सांस पर ध्यान कीजिए, आपको नींद आ जाएगी। और ये बहुत प्रैक्टिकल है, किया हुआ है, सिद्ध है, लोगों का अनुभव है। तो योगाभ्यास, मैं योगाभ्यास ही बोलता हूं, क्योंकि योग या योगा ठीक है कहा जाता है, लेकिन ये अभ्यास है, प्रैक्टिस है। जितनी प्रैक्टिस की जाएगी उतनी इसमें सिद्धि मिलती है, उतनी क्षमता एकदम जागृत होती है, और हमको पता लगता है कि योग हमारा सिद्ध हो रहा है। और इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता में जो 18 अध्याय है, प्रत्येक अध्याय को योग कहा है। योग माने जोड़ना या जुड़ जाना, योग माने मिलना या मिलाना, यानी शरीर और आत्मा, शरीर और मन, मन और चित्त, चित्त और अहंकार, जीव और शिव, जीवात्मा, परमात्मा, इन सब का मिलना वो योग है। इसलिए सांख्य योग, भक्ति योग, मोक्ष संन्यास योग, कर्म योग, ये सारे योग जो शब्द गीता में, और बार बार समत्वम योग उच्यते, और योग के बारे में युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, इस तरह से योग कैसे सिद्ध होता है, इसका बहुत वैज्ञानिक और सरल भाषा में, सरल तरीके से गीता में बताया गया है। और सांख्य और कर्म और भक्ति, ये सारी बात तो फिर दर्शन की, फिलोसॉफी की हो जाती है, जिसको रुचि है वो बाद में। लेकिन मुख्य बात है कि इसको करना, और प्रतिदिन जितना हो सके, वैसे तो 24 घंटा योग चलता है, जिसमें आप अपने हिसाब से शरीर अभ्यास, आसन करें, फिर प्राणायाम करें, प्रत्याहार करें, ध्यान, धारणा, समाधि जो अंतिम उसका है, और चित्त को शुद्ध करना या एकाग्र करना। क्योंकि जो योग करते हैं उनका छात्र करे तो उनकी एकाग्रता बढ़ती, प्रतिभा, मेधा बढ़ती है, जितना चाहे मेमोरी स्ट्रांग होती है। और
जो महिलाएं करें, तो महिलाओं तो उनका तो महिलाएं तो एकदम सृष्टि का प्रतिरूप है, प्रजनन करना होता है, तो उसमें उनके लिए योग परम श्रेष्ठ है। उनका अपना एक तरह से है कि प्रसूति के बाद कैसे करना या गर्भावस्था में कैसे जीना, रहना, खाना पीना, और योग के साथ आहार का बड़ा संबंध है। इसलिए युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, ये जो गीता का कहा है कि युक्त माने एप्रोप्रिएट, जितनी भूख लगे उतना खाना, या स्वाद पर नियंत्रण। यद्यपि कहना आसान है, करना मुश्किल है, मैं जानता हूं, क्योंकि स्वाद अच्छा लगता है खाना पीना, लेकिन फिर भी योगाभ्यास से इस पर नियंत्रण पाया जा सकता है। तो इस सब बातों को लेकर संक्षिप्त में मैं कहना चाहता हूं, प्रत्येक व्यक्ति किसी भी उम्र में, बालक हो, बड़ा हो, महिला हो, पुरुष हो, वृद्ध हो, सभी के लिए, कोई भी व्यक्ति हो, सबके लिए योगाभ्यास उत्कृष्ट है, लाभप्रद है, जीवन को पूर्ण बनाने की दिशा में एक विशेष प्रकार की ये जीवन पद्धति है। और ऐसी स्थिति में अब जब कोरोना कालखंड में हम लोग हैं, उस समय इस तरह का शिविर आयोजित करना जिसमें अधिक से अधिक लोग भाग लें और उनको प्रेरणा मिले, अभ्यास मिले, और कलाकार लोगों के लिए तो बहुत ज्यादा, चाहे वो नर्तक हो, गायक हो, थिएटर के लोग हो, अभिनेता वगैरह हो, उनके लिए तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में जैसे 3 वर्ष का पाठ्यक्रम है, तो प्रथम वर्ष में तो शरीर तैयार एक्टर का करने के लिए हम लोग उनको बहुत सारी एक्सरसाइज करवाते हैं, और उसमें योगाभ्यास है कि किस तरह से शरीर को, एक द्वारपाल की भूमिका में है तो 2.5 घंटे तक खड़ा रहना, तो खड़ा रह सके, तो केवल शरीर सिद्ध होगा, योग सिद्ध होगा, तभी वो कर पाएगा। तो इस तरह से शरीर को बनाने के लिए, शरीर की क्षमताओं को और शरीर की जो विशेष प्रकार की शक्तियां प्रसुप्त, क्योंकि हमारा शरीर शरीर नहीं है, ये ब्रह्मांड है रमा जी, ब्रह्मांड, यानी कि पूरे कॉस्मिक जो प्रक्रिया है उसमें जितनी सारी गतिविधियां वो हमारे शरीर में है। जो कुछ यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे जो बोलते हैं, तो हमारा शरीर केवल शरीर नहीं है पंचभूत का, इसमें सब कुछ है, और बहुत सारी प्रसुप्त शक्तियां हैं, सोई हुई शक्तियां हैं, उनको जागृत हम योगाभ्यास से कर सकते हैं। और ये निरापद और सरल मार्ग है, सिद्ध मार्ग है, प्रामाणिक मार्ग है। इस दिशा में श्रेष्ठ कला संगम और हमारा हंसराज महाविद्यालय मिलकर ये कार्य कर रहे हैं। निःशुल्क है, सबसे बड़ी बात है, और आप सब लोग इसका लाभ लेंगे ही। और इस तरह के कार्यक्रम के लिए सब अभिनंदनीय है, दोनों संस्थाएं, संस्था के लिए काम करने वाले सारे लोग और आप सब लोग। और रमा जी, आप तो प्रेरणा मूर्ति है, इसमें कोई संदेह नहीं है। धन्यवाद सर, आप हम लोगों की प्रेरणा है। नहीं, मिलके हम लोग इसमें इस रास्ते पे आगे बढ़ सकते हैं, और बहुत अच्छा है। श्रेष्ठ कला संगम, हंसराज कॉलेज ने कई मिलके कार्यक्रम किए और ये चलते रहेंगे, और धीरे धीरे स्थिति सामान्य हो, बहुत सारा कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी ये जो कालखंड है, महामारी है, इससे हमें अभी और आगे इसके साथ लड़ना है, संघर्ष करना है, प्रतिरोध करना है, और इसको प्रतिरोध को हम अपने आप को तैयार करके योग अभ्यास के द्वारा शक्ति अर्जित करके कर सकते हैं। मेरी बहुत बहुत शुभकामना इस सत्र के उद्घाटन के लिए। आप सब लोगों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, अभिनंदन, वर्धापनम, और यह कार्यक्रम सफल हो और इसी प्रकार के कार्यक्रम होते रहें। इन शुभकामनाओं के साथ मैं विराम लेता हूं। नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद, नमस्ते सर, धन्यवाद सर। आपने बिल्कुल ठीक बात कही और बिल्कुल सही भी है। आपने ईशावास्य उपनिषद मंत्र को यहाँ बताते हुए जो कहा कि योग कुछ और नहीं, एक जीवन को पूर्ण बनाने की कोशिश है, निरंतर कोशिश है, लगातार कोशिश है। मतलब हम जीवन पर्यंत ये काम करते रहेंगे, मतलब योगा करते रहेंगे और अपने आप को अपने से ही और परमात्मा से जोड़ने के उसमें लीन रहेंगे। तो बहुत ही अच्छी बात आपने कही। और जो आपने ये बात बोली, ये तो मैंने कभी शायद हम में से किसी का ध्यान नहीं भी किया होगा कि जो सच्चित आनंद की आपने बात कही कि सत मतलब सत्य और आनंद जो हमें दूर दिख रहा है, वहां तक पहुंचने का जो जरिया है दैट इज चित। और उस चित को यदि हम अपने कंट्रोल में रखते हैं, चाहे योग के थ्रू और योग के थ्रू या अपने जीवन को उस तरह से उसकी अपनी शैली में योग को उतार कर चित्त वृत्तियों को कंट्रोल करके अगर हम
रखते हैं तभी हम, या फिट रहते हैं तभी हम आनंद तक पहुंच सकते हैं। तो ये जो चित्त है उसी को हमें कंट्रोल करना है योग के माध्यम से। वही ब्रिज है, वही गैप है जो हमें फिल करना है। तो बहुत ही सर, आपने बहुत ही हमें सही बात बताई और हम उसके लिए आपके आभारी हैं। आपका धन्यवाद सर। जैसा कि अब अभी आप सबने, जो आप सभी को पता ही है कि ये योगा जो है, जैसा सर ने भी कहा कि घर से योगा अभ्यास, अभी तक हम जाते थे, जैसे मैम कह रही थी कि हमें ये जिम जाना है या पार्क में जाना है, इस तरह की हमारे साथ हमें अवेलेबिलिटी थी, लेकिन अभी कोरोना कालखंड में हम नहीं जा सकते हैं। तो ये जो इनिशिएटिव है ये अपने आप में मुझे लगता है कि जैसा जो सर ने कहा कि मैं तो आप सबसे यही इस बारे में कहना भी चाहूंगी कि अगर आप कोशिश कीजिए अपने घर में ही कोई ऐसी जगह, ऐसा कोना ढूंढिए जहां पर आप प्रकृति से मिल पाए, आपके आसपास कोई हरियाली हो, कोई शुद्ध हवा हो। इसीलिए ये सेशन का टाइम भी सुबह 7 से 8 का रखा गया है, ताकि एकदम प्रातःकालीन सूर्य की उधर से जो उषा है उसकी लालिमा हो आकाश में, और सामने साथ में आपकी प्रकृति हो, और ऐसे संयोग के साथ, ऐसे जो उन सबके साथ मिलकर आप अपने शरीर को और अधिक ज्यादा अच्छा बना सकें, हमारी यही कामना है। और जैसा सर ने कहा भी था अभी कि स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर को आपस में मिलाना है, उनके अंतर ध्यान उसमें होना है, आत्मचिंतन हमें ऐसा करना है कि ना ही हमारी स्थूल प्रकृति सही रहे, हमारा सूक्ष्म अंदर जो, उसके अंदर के अंदर जो हमारा मन है, चित्त है, अहंकार है, वो सब भी सही रहे। तो इसी सब कामनाओं के साथ, और जैसा कि सर ने एक और बात भी बहुत अच्छी कही कि हमारा जो योग अभ्यास से हमारा ब्लड सर्कुलेशन सही होगा, और ब्लड सर्कुलेशन ही अधिकतर सभी तरह की न्यूरो या दूसरी जैसी भी बीमारियां हैं, कोरोना भी उसमें एक है, जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं, वो सब उसी से ठीक होंगी। तो कहीं ना कहीं हम इस योग कैंप के थ्रू उस कोरोना काल में अपने आप को ऐसा स्वस्थ रखने की कोशिश यहाँ कर रहे हैं और चाहते हैं कि आप सभी ठीक रहें। और इसी के साथ मैं ये भी बताना चाहूंगी कि ये जो हमारा इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ये न्यू प्लेटफॉर्म है, जैसा मैंने अभी पहले भी कहा था कि हमें प्रकृति में बैठकर, इसलिए घर में खुद ही ऐसा कोना कोई ढूंढना होगा जहां हम इस काम को इस योगा को कर सके। तो इसी के साथ में यहाँ पर दोनों हमारे जो आज के जो गेस्ट हैं, दोनों हमारे चीफ गेस्ट हैं, हमारी इनॉग्रल जो वेलकम एड्रेस मैडम ने दिया, प्रोफेसर रमा मैडम, प्रोफेसर बलदेवानंद सागर जी, आप दोनों के प्रति सर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, हार्दिक स्वागत और धन्यवाद करती हूँ कि आपने हमें मौका दिया इस कार्यक्रम को आगे चलाने का, और हमें एक तरह से एक रूपरेखा भी बताई कि हमें किस तरह से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। और ये कार्यक्रम क्योंकि फेसबुक द्वारा लाइव है, ना केवल फेसबुक द्वारा बल्कि यूट्यूब पे, ट्विटर पे, हर सोशल प्लेटफॉर्म पे है, जिससे कि केवल हमारे साथ यहाँ उपस्थित अटेंडीज ही नहीं जुड़ रहे, भारत में के अलग अलग कोनों, इवन विदेश में भी लोग इस कार्यक्रम को देख सकते हैं, लाभान्वित हो सकते हैं। तो हमने इस प्रोग्राम के थ्रू श्रेष्ठ कला माध्यम, श्रेष्ठ कला संगम और हंसराज कॉलेज के द्वारा हमने ये कोशिश की है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्वस्थ करने की कोशिश में हम लगे। और इसीलिए, और क्योंकि योग के थ्रू ही हमारी मेधा, हमारी विल पावर, हमारा जो क्षमता है, हर तरह की चीज उसी से संभव है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यहाँ पर अपनी बात को आपको सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि प्लीज स्टे कनेक्टेड विद अस फॉर नेक्स्ट 15 डेज एंड बी फिट। एंड अगले 10 मिनट में हमारा जो फिजिकल एक्सरसाइजेस का जो योगा का सेशन है वो शुरू होगा। आप सब हमसे जुड़े रहिए, और आज के इस कार्यक्रम के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हमारे आज के गेस्ट के प्रति भी मैं धन्यवाद करती हूँ। हमारी जो मीडिया टीम है और जो हमारी जो टेक्निकल सपोर्ट है इस प्रोग्राम को चलाने के लिए, उनके प्रति भी धन्यवाद करती हूँ और मंगल कामना करती हूँ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।